Pakistan will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including in the United States. پاکستان ایسے میزائل بنا رہا ہے جو واشنگٹن کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. امریکہ کا دعویٰ. پاکستانی اقدامات بیلسٹک میزائل پروگرام کے مقاصد کے بارے میں سنجیدہ سوالات اٹھاتے ہیں. امریکی قومی سلامتی کے نائب مشیر جان فائنر کا بیان. پاکستان امریکہ کا اہم شراکت دار ہے لیکن بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق تحفظات واضح ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کی بریفنگ. خیبر پختونخوا ایپیکس کمیٹی کا ضلع کرم کو اسلحے سے پاک کرنے کا فیصلہ. تمام بنکس کا خاتمہ کیا جائے گا. فریقین کو ہتھیار جمع کرانے کے لیے 1 فروری تک کی مہلت. زمینی راستے وقفے سے بحال کیے جائیں گے. فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کرنے پر اتفاق. علاقے میں ادویات اور دیگر اشیاء ضروریہ بر وقت فراہم کی جائیں گی. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس میں سول اور عسکری قیادت کے اہم فیصلے. اجلاس میں گرینڈ جرگہ عمائدین سے ملاقاتیں جاری رکھنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزیر داخلہ محسن نقوی ایپیکس کمیٹی اجلاس سے قبل ملاقات. کرم میں قبل قیام امن کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال. محسن نقوی نے مکمل مدد کی یقین دہانی کرا دی. گنڈاپور کا مل کر دہشت گردوں سے مقابلہ کرنے کا عزم. دونوں رہنماؤں نے FCK کے شہداء کی یادگار پر حاضری دی. حکومت سنجیدگی سے مذاکراتی عمل میں اس کو دیکھ رہی ہے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ پورے اس پروسیس میں حکومت رہے گی. ہم اپنی کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں اور اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اتحادیوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں اور ان کی بھی ریفلیکشن اس کمیٹی میں نظر آئے. حکومت PTI مذاکرات میں بڑی پیش رفت. حکومت نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا. چند روز میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا. تحریک انصاف پہلے ہی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے چکی. دونوں کمیٹیاں اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں ملاقات کر کے مذاکرات کے لیے ٹرم آف ریفرنس طے کریں گے. مشیر وزیر اعظم بیرسٹر عقیل کی ڈان نیوز کے پروگرام دوسرا رخ میں گفتگو. شبلی فراز کو حکومت پر مذاکرات میں مخلص نہ ہونے کا شبہ. بات چیت کی کامیابی موجودہ حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گی. رہنما PTI کا دعویٰ. ہمارا کام ہے فیسیلیٹیشن کا. بٹھانا میرا کام ہے. لوگوں کو پکڑ کے نہیں کہہ سکتے آ جاؤ بھائی آؤ میں کراتا ہوں. وہ اگر ان کی مرضی ہوگی آنا چاہتے ہیں تو ہم نہ نہیں کریں گے. اسپیکر ایاز صادق نے اپوزیشن اور حکومت کو مذاکرات کی میز پر لانا اپنی ذمہ داری قرار دے دی. ایک فریق نے کمیٹی بنائی مگر وہ صرف ٹی وی پر بات کر رہے ہیں. بات کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے. بات چیت کی منت تو کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کو پکڑ کر نہیں لا سکتے. اسپیکر کا شکوہ. سپریم کورٹ آف پاکستان کا ادارہ بھی اتنا ہی سچ بولتا ہے جتنا کہ معاشرہ. 40 سال کے بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا. کسی ذمہ دار کو سزا دی جانی چاہیے تھی. جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس. ریاست کی کیا بات کریں. 3 وزرائے اعظم مارے گئے. ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے. تمام ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں. ریاستی ادارے سیاسی انجینئرنگ میں مصروف ہوں گے تو ایسا ہی حال رہے گا. جسٹس جمال خان مندوخیل کا مکالمہ. وزیر اعظم ایک دن وزیر اعظم ہاؤس تو دوسرے دن جیل میں ہوتا ہے. کسی کو معلوم نہیں کسی نے کتنے دن وزیر اعظم رہنا ہے. جسٹس ملک شہزاد کے قتل کیس میں ریمارکس. ملزم اسحاق کو گرفتار کر کے جیل حکام کے حوالے کرنے کا حکم. ملزم ضمانت حاصل کرنے کے بعد فرار ہو گیا تھا. GHQ گیٹ حملہ کیس میں بانی تحریک انصاف شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، شبلی فراز اور دیگر ملزمان کی فرد جرم عائد کرنے کے خلاف درخواستیں خارج. سماعت کے دوران PTI کے وکلاء اور پروسیکیوٹر میں تلخ جملوں کا تبادلہ. عدالت نے ریمارکس دیے. وکلاء کے چوں میں عدالت نہیں پڑے گی. عدالت نے زین قریشی سمیت 6 ملزمان کی مسلسل غیر حاضری پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے.
मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तनाज़ा खत्म होने की उम्मीद। मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने वज़ारत कानून को मामला आइन और कानून के मुताबिक हल करने की हिदायत कर दी। सरबराह JUI ने जल्द खुशखबरी मिलने की उम्मीद जाहिर कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का इजलास। वफाकी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हल करने की यकीन दहानियों का जायजा। शुरका ने हुकूमत की आइंदा कानून साजी पर भी ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने शुरका को हुकूमत से राबते मजीद तेज करने की हिदायत की। इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला सिंध की भी शिरकत। गुजरात तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन और किकबैक्स का रेफरेंस। मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। परवेज इलाही एहतसाब अदालत लाहौर में पेश न होने पर फर्द जुर्म से बच गए। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब बाथरूम में फिसल कर गिर गए, कमर और टखने पर चोटें आईं। वकील का अदालत में बयान। 18वीं तरमीम के बाद मुल्क में इस्तेहकाम आया। तरमीम के तहत किए गए फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। मुस्तकबिल में चार्टर ऑफ इकॉनमी भी लाना चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। वाज़ेह कर दिया, अगर सूबों को पहले हुकूक दिए जाते तो सकूत ढाका न होता। रहनुमा JUI डॉक्टर खालिद महमूद से उम्र कत्ल केस के तमाम 6 मुल्जिमान को उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा। सखर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। JUI रहनुमा राशिद महमूद सोमरो ने अधूरा इंसाफ करार देकर आला अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। अदालती फैसले में क़िसास के पहलू को बज़ाहिर नजरअंदाज कर दिया गया। मौलाना फजल रहमान का रद्द अमल। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए वज़ीर आज़म के खत का कोई जवाब नहीं आया। पाकिस्तानी मिशन की जानिब से वफ्द की डॉक्टर आफिया से मुलाकात के इंतजामात कर लिए गए थे। वज़ारत ख़ारजा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। दस्तावेज के मुताबिक वफ्द ताख़ीर से पहुंचा, मगर आपका सफ़ीर कहाँ था? अदालत का सवाल। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिशों, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के दौरों की तफसीलात तलब कर लीं। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। ख्वारिज शूरा का सरगुनार मुफ्ती फजलुल्लाह का करीबी साथी अली रहमान और ताहा स्वाति समेत 7 ख्वारिज मारे गए। ऑपरेशन के दौरान एक खारिजी की करीबी घर में दाखिल होकर 2 बच्चों को ढाल बनाने की कोशिश। फोर्सेस ने महारत से बच्चों को बहिफाजत बाजियाब करवा लिया। असलहा और बारूद से भरी गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई। कराची के इलाके कौरंगी में इंसदाद पोलियो टीम पर हमला। मुल्जिमान ने बेलचों से तशद्दुद का निशाना बनाकर 2 पोलियो वर्कर्स और पुलिस एहलकार को जख्मी कर दिया। तशद्दुद में मुलव्विस 4 खवातीन समेत 6 अफराद गिरफ्तार। वजीर आला मुराद अली शाह का पोलियो टीम पर हमले का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर्स को पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी का जायजा लेने की हिदायत। वजीर आजम ने इंसानी स्मगलिंग के सहूलतकार FI एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इंसानी स्मगलिंग मुल्क की बदनामी का बाइस बनती है। गुज़श्ता साल हादसात पर कार्रवाई में सुस्ती बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। लाहौर और गुजरांवाला में यूनान कश्ती हादसे के 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर से गिरफ्तार एजेंट्स ने 4 अफराद को गैर कानूनी तरीके से इटली भिजवाने के 88 लाख रुपए लिए। मरकजी मुल्जिम कमर उर्फ खुर्रम लीबिया से गिरोह चला रहा है। गिरफ्तार सहूलतकार नदीम रकम वसूल करता था। दूसरा मुल्जिम लोगों को एयरपोर्ट छोड़कर आता था। हफ्तावार महंगाई में मुसलसल दूसरे हफ्ते भी इजाफा। 0.38% इजाफे से शरह 4.64% तक जा पहुंची। एक हफ्ते में 15 अशिया जरूरिया महंगी हुई। ओगरा ने LNG की कीमतों में 2.72% तक कमी कर दी। दिसंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे भर में तजावुजात मुस्तकिल बुनियादों पर खत्म करने का हुक्म दे दिया। तमाम बड़े शहरों में अंडरपासेस के अतराफ और ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने की हिदायत। तालीमी इदारों के सामने सड़क पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग के साथ साथ कैट आइज भी लगाने के अहकामात जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने तुर्बत में मंदरोड मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। प्रोजेक्ट की तकमील 3 के बजाय 2 साल में करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने हर इदारे को अपनी हुदूद में रहकर काम करने की हिदायत कर दी। साबिक IG से मुलाकात में खुद मुख्तार गवर्नेंस और एहतसाब की जरूरत पर जोर। पंजाब के बाद हुकूमत सिंध ने भी मरहूम मुलाजमीन के बच्चों के लिए मुलाजमतों के कोटे का कानून खत्म कर दिया। तमाम महकमों को कोटे के केस भेजने से मना कर दिया गया। महकमा एंटी करप्शन सिंध ने शिकायत पर कार्रवाई तेज कर दी। 23,673 दरख्वास्तों की छानबीन शुरू। 6,000 से ज्यादा शिकायत निपटा दी गईं। हुकूमत सिंध ने थानेदारों और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को 2 लाख रुपए खर्च करने का इख्तियार दे दिया। महकमा दाखिला की सिफारिश पर कानून में तरमीम। लाहौर के इलाके मनावा में आवारा कुत्तों ने खातून को भरमोड़ डाला। शदीद जख्मी खातून अस्पताल मुंतकिल। वाक़े की फुटेज सामने आ गई। पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर ने कुत्तों को पकड़कर NGO के हवाले कर दिया। कंदकोट में अगवा बराए तावान, डकैती और भत्ताखोरी के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। तमाम कारोबारी मराकज बंद, दुकानों पर ताले डाल दिए। मुजाहिरीन का कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन करने का मुतालबा। क्वेटा में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। समंगली रोड पर सुई सदरन कंपनी ऑफिस के सामने खवातीन ने सड़क बंद कर दी। मुजाहिरीन ने हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी का कराची में पानी के बहरान पर कल मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज का ऐलान। मुनम जफर ने कराची वाटर कॉरपोरेशन और मेयर मुर्तजा वहाब को पानी की किल्लत का जिम्मेदार ठहरा दिया। सिंध में सर्दी बढ़ते ही गैस की लोड शेडिंग का मसला संगीन। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वफाकी हुकूमत से तरजीही बुनियादों पर बिला ताअत्तुल गैस की फराहमी का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। सबसे ज्यादा ठंड स्कर्दू और लेह में पड़ी। दर्जे हरारत -12 तक जा गिरा। गिलगित में पारा -8, स्तोर में -6 और हुंजा में -4 रिकॉर्ड। चित्राल और दीर में पारा -5 रहा। बलूचिस्तान में क़िल्लात में -7 और कोयटा में -6 सर्दी पड़ी। मरी का दर्जे हरारत -2 रहा। सिंध में सबसे ज्यादा सर्दी मिट्टी में पड़ी, जहां दर्जे हरारत 2 पर पहुंच गया। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अगले 6 साल में $348 अरब की फंडिंग दरकार। पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक में 5वें नंबर पर आ गया। वजीर आजम की कोऑर्डिनेटर रुमेना खुर्शीद का इंकशाफ। आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने वाले बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के 13 असातिज़ा ने वहीं शहरियत हासिल कर ली। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में इंकशाफ। रुकन कमेटी कादिर मंदुखेल ने वापस न आने वाले असातिज़ा के जामिनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तजवीज़ दे दी। पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंसिंग आगाही मुहिम का आगाज। 21 से 31 दिसंबर तक शहरियों को एजुकेट किया जाएगा और फिर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरियों की सहूलत के लिए तमाम लाइसेंसिंग सेंटर्स 24 घंटे तक खुले रहेंगे। BRT पेशावर में सफर करने वालों के लिए बुरी खबर। 300 वाला कार्ड 400 रुपए का कर दिया गया। ट्रांस पेशावर की जानिब से नया रेट जारी। गजा पर सहूनी फौज के हमले में मजीद 77 फलस्तीनी शहीद, 174 जख्मी। 14 माह से जारी सहूनी दहशतगर्दी ने 91 बच्चों समेत 640 एथलीट्स की जानें ले ली। शहादतों की मजमूई तादाद 45,206 हो गई।
यमनी हौसियों ने तल अबीब पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागने की वीडियो जारी कर दी। तल अबीब पर फलस्तीन 2 नामी 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए। मिसाइल के टुकड़े पार्लियामेंट के करीब भी गिरे। इजरायली अखबार का दावा। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे वनडे में 81 रन से हराकर सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। शाहीनों के 330 रन हदफ के ताक़ुब में प्रोटियाज 248 रन पर ढेर। कामरान गुलाम 63 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान साल 2000 के बाद जनूबी अफ्रीका में 3 वनडे सीरीज जीतने वाली पहली टीम बन गई। शाहीनों ने 2013, 21 और 24 में एक रोजा मैच की सीरीज जीती। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कामयाबी टीम वर्क का नतीजा करार दे दी। जनूबी अफ्रीका के बैटर हेनरी क्लासन को आउट होने पर गुस्सा करना बहुत महंगा पड़ा। विकेट को लात मारने पर मैच फीस का 15% जुर्माना आयद। विराट कोहली का भारत छोड़कर मुस्तकिल तौर पर जल्द बरतानिया मुंतकिल होने का फैसला। विराट और उनकी अहलिया अनुष्का ज्यादातर वक्त बरतानिया में ही गुजारते हैं। कोहली के कोच राजकुमार शर्मा ने भी तस्दीक कर दी। फ्रांस में जारी फुटबॉल लीग में स्टार फुटबॉलर अशरफ हकीमी की टीम पेरिस सेंट जर्मैन ने 12वां मैच जीत लिया। फातेह टीम ने मोनाको के खिलाफ 2 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी समेटी। पेशावर में पुराने मॉडल की खस्ता हाल गाड़ियों को नए रूप में ढालने का रुझान। कदीम गाड़ियों को चमचमाने वाले करामत शाह की कारीगरी देखने वाले दाद दिए बगैर नहीं रह पाते। और लाहौर में 3 रोजा ब्राइडल couture वीक का रंगारंग आगाज। पहले रोज साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम भी फैशन रैंप पर जलवा कर हुए। गुलकार बिलाल सईद ने अपनी आवाज का जादू जगाया।